السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی اندر برانڈ نیو ولاگ. تو آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا سیکٹر E12 کا. E12 میں ابھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور یہ CDA کا سیکٹر ہے. آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تو یہ مارگلہ ایونیو اس کو کہتے ہیں. یہ مارگلہ ایونیو اور اس کا نام ایران ایونیو بھی رکھا گیا ہے. یہ سیدھی جائے گی اور یہ E12 پھر D12 اور اس کو کنیکٹ کرتی ہوئی GT روڈ پہ نکلتی ہے. اور اگر آپ اس سائڈ پہ میں دکھاؤں آپ کو، یہ F11 سیکٹر ہے اور میرے اس سائڈ پہ اگر آپ دکھائیں تو یہ جو ہے F10 سیکٹر ہے. تو ابھی اس سائڈ پہ یہ جو راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہے، یہ سیدھی یہ اسٹریٹ روڈ جائے گی اور یہ کنیکٹ کرے گی IJP روڈ کو جو راولپنڈی اور اسلام آباد کو بائرفرکیٹ کرتی ہے. تو چلیں اب چلتے ہیں اپنا E12 کی طرف. تو چلیں ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھیں. ابھی ہم اس ٹائم جو ہے یہ E11 کے سامنے کھڑے ہیں. یہ سامنے E11 کی طرف راستہ جا رہا ہے. یہ اس سائڈ پہ جو ہے E11-4 ہے اور وہ اس سائڈ پہ E11-3 ہے. اس سے اندر E11-2 اور 1 ہے. اس ٹائم ہم یہ ایران ایونیو بورڈ بھی دکھا دیں آپ ادھر، وہ دکھا دیں ذرا بورڈ. یہ ایران ایونیو اور اس کو نیو مارگلہ روڈ بھی کہتے ہیں. تو چلیں اب آگے بھی چلتے ہیں، جانا نہیں ہے آپ نے. تو یہ اب ہم ایران ایونیو کے اوپر ہی جا رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو پہاڑ وغیرہ نظر آ رہے ہیں. یہ مارگلہ کی پہاڑیاں، یہ ادھر E11-3. اس مارگلہ روڈ کے اوپر آلموسٹ ہم وہ جو F11 کا سرکل تھا اس سے تقریباً 3-4 منٹ کی ڈرائیو پہ E12 میں پہنچ جائیں گے. E12 تو آج آپ کو ایک تفصیلی ریویو کرواؤں گا. ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ نے جانا نہیں ہے. اچھا، یہ اب ہم D12 میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ D12 کا ایریا ہے. یہ سامنے جو گھر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ D12-4 کے گھر ہے. یہ ایک ساری مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیاں، D12-4 کے گھر. یہ سیکٹر D12 کا بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے. ادھر سے انٹرنس ایک دی ہوئی ہے، آگے سے بھی اس کی انٹرنس ہے. ابھی ہم D12 میں آگے سے انٹر ہوں گے اور E12 میں جائیں گے. تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو ویو وغیرہ دکھا دوں. ویسے ادھر سے شارٹ کٹ راستہ تھا جو D12 کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اور میں نے کہا آپ کو دکھا دوں. یہ مارگلہ روڈ جو ہے یہ سیدھی جی ٹی روڈ کو، گرینڈ ٹرنک روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے. یہ ادھر سے ہم D12 میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ D12 کی سینٹر والی روڈ ہے. ہمارے رائٹ سائڈ پہ D12-1 اور 2 اور لیفٹ سائڈ پہ یہ D12-3 اور 4. یہ D12 کا مرکز اور یہ گھر وغیرہ D12-3 کے. ابھی ہم یہ E12 میں انٹر ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سامنے آپ کو ڈبل روڈ نظر آ رہی ہے وہ ادھر جو کام چل رہا ہے وہ نالے پہ کام چل رہا ہے. یہ E12-3 کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے سروس روڈ ہوگی نارتھ. یہ ڈبل روڈ بنے گی. یہ اس سائڈ سے آتے ہوئے یہ اسٹریٹ جوائن کرے گی آپ کے E11 کے ساتھ. جو ڈبل روڈ آ رہی ہے اس کو یہ جوائن کرے گی اسٹریٹ. اب یہ آپ سامنے آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جو ہے یہ E12-3 کی، اور یہ جو روڈ آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور یہ جو سامنے گھر ہیں یہ جو آپ کو کے سینٹر میں بائرفرکیٹ کر رہی ہے. جو ڈبل روڈ آپ میپ پہ دیکھیں گے تو اس سائڈ پہ 2 ہوگا اور اس سائڈ پہ 3 ہوگا. اس سائڈ پہ 1 ہوگا پھر اس کے آگے، اور اس سائڈ پہ 4 ہوگا. یہ وہ والی ڈبل روڈ، یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ سامنے گھروں سے ہوتے ہوئے یہ ڈبل روڈ بنے گی. یہ ادھر بھی آپ دیکھ لیں، یہ ڈبل روڈ پہ کام چل رہا ہے. اور یہ
इस साइड पे भी आप देख लें, ये डबल रोड पे काम चल रहा है। तो अभी हम आपने जाना नहीं है, पूरी वीडियो तफसील से देखनी है। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ अंदर की रोड्स वगैरह, स्ट्रीट्स वगैरह, जो जो काम हो चुका है। तो चले। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये अभी हम एरिया जो दिखा रहे हूँ मैं आपको ना, ये E12-3 का है सारा। ये अभी इधर कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं। वो उधर से जो ऊपर से मैंने आपको खड़े होके दिखाया था, सिर्फ उधर ही चंद गलियां कटी हुई हैं। उनकी तफसील भी मैं थोड़ा गाड़ी से उतर के फिर आपको बताऊंगा कि E12-3 में कौन कौन सी स्ट्रीट्स कट चुकी हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मरकज का एरिया आता है E12 का। थोड़ा इधर। तो ये अभी फर्दर मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये रोड के, ये अभी गांव की रोड है इधर। ये E12-3 का एरिया है, E12-3। ये आप देख लें, अभी इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है। चंद भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि आप जाएं और उधर का हमें रिव्यू करवाएं। अभी आप देख सकते हैं ये E12-3 और ये गांव की रोड आपको दिख रही है। ये टोटल मैं आपको रिव्यू करवाता हूं। अभी चंद भाई के उनकी वो थी, ख्वाहिश थी कि आप जाके E12 की अभी रिव्यू करवाएं। तो इस टाइम E12 में है हम। वो जो चंद गलियां ऊपर से मैंने आपको व्यू करवाया था E12-3 में। तो अभी हम जाएंगे अपना E12-2 का भी देखते हैं एरिया, वो भी आपको विजिट कराते हैं। वीडियो फिर काफी लंबी हो जाती है। अच्छा, तो व्यूअर्स, ये E12 के अंदर एक सिंगल रोड 70 फीट की स्ट्रीट जा रही होती है। तो ये इसमें हम एंटर हो गए। तो अभी हम उतर के आपको तफसीली इसका भी रिव्यू देते हैं। टाइम अभी हम ये E12 के अंदर खड़े हैं। E12 की अगर आप मैप पे देखोगे तो 70 फीट की एक रोड आ रही होती है। 70 फीट रोड आप मेन से, जब वो मैंने आपको एक कच्ची रोड दिखाई थी डबल रोड, उससे आप एंटर होंगे लेफ्ट साइड पे। तो जैसे ही आप एंटर होंगे तो एक ये स्ट्रीट जा रही है 50 फीट्स की, और एक इस साइड पे ये स्ट्रीट जा रही है 50 फीट्स की। इसमें जो है टोटल जो है 600 गज के प्लॉट हैं। 600 गज मींस 60 बाय 90 साइज के प्लॉट्स हैं। इससे आगे एक स्ट्रीट कटी हुई है और उस साइड पे 500 गज के हैं, और इस स्ट्रीट में ये इस हाथ पे भी आपको 600 गज के प्लॉट मिलेंगे। अब अगर आप उधर देख सकते हैं व्यू, तो उधर आपको बाकी प्लॉट्स भी वो साइजेस फिर मैं ऑफिस में जाके आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कराऊंगा, गाड़ी में घुमा के दिखाऊंगा, फिर मैप पे बैठ के आपको सारी मैं तफसील बताऊंगा कि किस जगह पे पोजीशन है और किस जगह पे नहीं है। तो आपने वीडियो को आधा नहीं छोड़ना है, चलें हमारे साथ। और ये अभी हम स्ट्रीट के अंदर आ गए। इधर ये 600 गज के प्लॉट, ये प्लॉट भी है मेरे पास फॉर सेल। बैक ओपन है, फ्रंट फेस के 50 फुट गली है, बैक फेस के ओपन एरिया है। इसके पीछे घर नहीं बनेगा। दूसरा, ये नाला आपका जा रहा है बिल्कुल ये एंड पे, इसके आगे एक और प्लॉट है उसके साथ पैरेलल। ये सामने आपको अगर डबल रोड नजर आ रही है, वो सुजुकी जो जा रही है, और वो प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। उधर से खड़े होके मैंने आपको दिखाया था कि उस साइड पे E12-3 और इस साइड पे E12-4 है। अगर इधर आप थोड़ा सा जूम करके दिखा सकें तो ये गलियां वगैरह बनी हुई है, स्ट्रीट्स वगैरह। इसमें बात स्ट्रीट 2 में जरा काम हुआ है, स्ट्रीट्स वगैरह काफी बनी हुई है। अच्छा, 3 में इतनी मतलब है पोजेशन का वो सीन नहीं है। वो मैं फिर दफ्तर में बताऊंगा आपको सारी तफसील, और प्राइसेस भी बताऊंगा कि इसकी क्या प्राइसेस हैं ऑफिस जाके। तो आपने हमारे साथ रहना है थोड़ा सा। अब हम आपको स्ट्रीट रिव्यू करवाएंगे, चलते। ये अब हम आपको ओवरऑल रिव्यू, ये 70 फीट्स की रोड जो जा रही है, ये 12-2 का एक हिस्सा है इसका, और ये 12-2 का दूसरा हिस्सा है। उधर भी आपको अगर देख सके तो वो स्ट्रीट्स वगैरह कटी हुई है, ये स्ट्रीट कटी हुई है। ये मैं सारी तफसील आपको फिर बताऊंगा कि कौन कौन सी स्ट्रीट्स कटी हैं। आपको ऑफिस में बताऊंगा सारी तफसील, इसकी प्राइसेस वगैरह, ये सारी। ये एक जनरल सा रिव्यू अभी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि एक गली बनी हुई है, फिर आगे गली खत्म हो जाती है, फिर दूसरी बनी हुई है, बीच बीच में काम हुआ है।
ये E12 का शॉपिंग सेंटर है। तो ये इनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ऑफ सेक्टर E12-1, ये अभी हम आगे E12-1 में एंटर हो जाएंगे। और अभी हम इस टाइम 1 के अंदर एंटर हो गए हैं। वो जो सामने आपको कब्रिस्तान चार दीवारी नजर आ रही है ना, दीवार लगी हुई, ये जो है इधर से ये जो बाइफरकेट करती है वो 1 और 2 को, वो रोड उधर से जाएगी। ये सारा एरिया जो है ये का आ जाता है E12-1 का। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया ये जो खाली पड़ा हुआ है, इधर अभी गांव बसा हुआ है, घर वगैरह बने हुए हैं। अगर जूम करके आप थोड़ा दिखाएं इसको, पूरा जूम करें इसको, तो ये सारा इधर गांव बसा हुआ है ये 1 में। इधर अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट का काम अभी कोई नहीं चल रहा, ना चल रहा है और ना चल सकता है। तो 1 में तो अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट, अगर आपको बिल्कुल लो प्राइस में कोई चीज मिलती है तो वो आप परचेज कर सकते हो, पर इट विल टेक टाइम। 3 में भी कुछ गलियां हैं वो डेवलप्ड है, ज्यादातर उधर भी कब्जा नहीं है। अच्छा, बाकी आ जाता है फिर 4 में भी ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, आपकी जो ज्यादा गलियां और स्ट्रीट्स वगैरह कटी हुई हैं ज्यादातर, तो वो 2 में कटी हुई है। अब ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि 2 गलियां इधर से कटी हैं और 3 गलियां उधर से कटी हुई हैं, तो वो जाने में फिर घूम के आना पड़ता है, वो काफी प्रॉब्लम। तो चलें अब चलते हैं हम ऑफिस की तरफ। अभी हम आ गए ऑफिस में। तो आज ये कपड़े भी चेंज आपको नजर आ रहे होंगे, देख लें आप वीडियो पे, बड़ी मेहनत लगती है पूरा दिन। कल हमने उसका वो किया, एरिया विजिट किया, उसकी वीडियोस वगैरह बनाई। तो दूसरा दिन अब हो गया, क्योंकि वो फिर देर हो गई, ऑफिस आना नहीं हुआ, तो अगले दिन। तो इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है, तो लाजमी चैनल वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो अच्छा, चलते हैं अब काम की तरफ। कल मैंने आपको विजिट करवाया था E12 का। तो E12 में 3 में जो है, अगर आपके पास मैप होगा तो इसमें जो गलियां वगैरह स्ट्रीट्स वगैरह कटी हुई हैं, तो वो जो नाले का अंदर अंदर एरिया है E12-2 का और 3 का, उसमें कोई स्ट्रीट्स वगैरह, उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये फिर बता दूं कि जो था E12-3 के बारे में, E12-3 के बारे में ये डिटेल्स हैं कि उसमें जो 600 गज के प्लॉट हैं टूवर्ड्स E11, तो उसमें 600 गज के जो प्लॉट हैं और 25-50 के कुछ प्लॉट हैं, उसमें एरिया कटा हुआ है। 40-80 के प्लॉट हैं, 50/90 के प्लॉट हैं, वो कटा हुआ है एरिया। और दूसरा, हम E12-2 में कल गए थे, तो वो अगर आप वीडियो आपने देखी हो तो उसमें हम 70 फीट वाली स्ट्रीट पे खड़े थे। तो 70 फीट वाली जो स्ट्रीट है उसमें आपकी ये 600 गज की 2 स्ट्रीट्स कटी हुई हैं, फिर बीच में आपकी कुछ स्ट्रीट नहीं कटी हुई है जब आप E12 की तरफ D12 की तरफ से आप आते हैं। तो पहले 600 गज की स्ट्रीट कटी हुई है, फिर उसके बाद दो या तीन स्ट्रीट्स कटी हुई है, फिर एक दो तीन स्ट्रीट्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद 40-80 के प्लॉट आते हैं, उधर 2 स्ट्रीट्स में मतलब है वो कट चुकी है स्ट्रीट्स वगैरह। फिर इसमें आपके आ जाता है ये 25-40 के प्लॉट हैं टूवर्ड्स नाला, तो वो अभी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद आपका राइट साइड पे 25-50 के कुछ प्लॉट आते हैं, वो 70 फीट रोड से। उधर आपने अगर देखा हो तो उधर आपका वो एक कब्रिस्तान सा बना हुआ है, उसमें 25-40 के प्लॉट हैं, वो नहीं कटे। फिर 35-70 की कुछ गलियां हैं एडजेसेंट, वो अपना E12-1 की तरफ, उसमें एक दो गलियां कट चुकी हैं। अच्छा, E12-1 में काम ना होने के बराबर है, और E12-4 जो है वो तो बिल्कुल ही उधर गांव वगैरह बसा हुआ है, ये तकरीबन दोनों में। तो लुबे लुबाब ये है इसका।
इस वीडियो का कि 3 में आप समझ सकते हो कि 25% स्ट्रीट्स कट चुकी हैं। 2 में आप समझ सकते हो कि 50% 50 या 60% कटिंग हो चुकी है। 1 में 5-10% मैक्सिमम, और 4 में तो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि उसमें कोई स्ट्रीट वगैरह कटी हो सकता है इक्का दुक्का कोई स्ट्रीट उन्होंने काट ली हो। जैसे जैसे इनको सीडीए को पोजेशन मिल रहा है तो वो कटिंग कर रहे हैं। और इसकी प्राइसेस जो हैं 25-40 की, मैं एक ब्रैकेट प्राइस बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों से वादा किया था। 25-40 की जो प्राइसेस हैं वो 1-10 से शुरू होके तो एक 25-30 तक, लोग मांगते हैं 1.5 करोड़ भी हैं, पर एक 25-30 तक। फिर 25-50 के प्लॉट हैं वो 2 करोड़ का भी है और एक 25-30 का भी है। फिर उसके बाद 30/60 जो आ गया वो 2 करोड़ से शुरू होके तो तकरीबन 2.5 तक आप कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 35/70 के साइज हैं, 35-70 उसको बोलते हैं 10 मरला। 10 मरला के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 से शुरू होके तो आपके चले जाएंगे तकरीबन 3.25 तक जाते हैं, पर 3.25 में सेल परचेज है नहीं अभी इस टाइम। उसके बाद 40-80 भी इसी तरह प्लस माइनस में 3 से आप कह सकते हैं 4 के लगभग। फिर 50-90 के जो हैं वो आपके 4.5 से शुरू होके तो 5.5-6 भी लोग डिमांड करते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन, गली कटी हुई है या क्या। और 600 गज के जो 60/90 के प्लॉट हैं तो वो तकरीबन आप समझे कि 5 करोड़ से शुरू होके तो वो आपके चले जाते हैं 7 करोड़ तक आस्किंग में। तो ये एक ब्रैकेट प्राइसेस हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप राब्ता करें। हमारे ऑफिस टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक है। तो आप उस पे दिए गए नंबर पे राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें तो बेहतर होगा, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर मजबूरन आपको कॉल करनी पड़ती है तो कॉल भी कर लें, अगर हम कन्वीनियंट हुआ तो हम पिक कर लेंगे, अदरवाइज हम कॉल बैक आपको कर लेंगे। तो ये एक टोटल रिव्यू था E12 का। चंद दोस्तों की वो थी ख्वाहिश थी कि आप उधर का भी रिव्यू करें, तो अब इजाज़त चाहते हैं, पर जाने से पहले पहले आपने सब्सक्राइब और अपनी आरा से भी आगाह कर दें और अपने अजीज़ व अकारिब को हमारा चैनल शेयर कर दें ताकि वो भी इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन को भी वो भी ऑल पे रख लें। तो अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।